Hello students, myself yes Madar. I am a chemistry faculty. So today now taking the class on the NEET Foundation course. So in that brief introductions of the chemistry. Brief introduction of chemistry. Brief introductions of chemistry. In brief introductions of chemistry, we know about the branches of chemistry. So there are the three branches of the chemistry. That is, one is the physical chemistry. Second is the inorganic chemistry. Inorganic chemistry. Third is the organic chemistry. So these are the three branches. In these three branches, we know about the studies of the physical chemistry, inorganic chemistry, organic chemistry. In your foundation course or as well as in the first year classes, so these three branches are included and they have in the 4 or more than 4 chapters are every physical, inorganic and organic chemistry. In short or in brief, we know about the definition of the branches of chemistry. So we know that the science, what is meant by the science? Science is a branch of chemistry, the branch of science which deals with the study of the organic compounds like that. We know about the definitions. But here in the physical chemistry, it is a branch of chemistry which deals with the study of energy transformations. In organic chemistry and inorganic chemistry, we study about the metal and the extraction of the metal. And in the organic chemistry, we study about the carbon and the hydrogen's compounds, how they are making, how they are forming, and how the formations of the products, how the reaction is occurring. Everything is in the organic chemistry. So out of these three branches, so we know about each branching or the physical chemistry, organic chemistry, organic chemistry. So first of all, again we know about the basic terminology or the basic concepts, that is CDF concept and definitions formulas. So in that, first of all, we know the atom. What is mean the atom? The very familiar in the chemistry. So it many times it will comes or the definitions it will comes the words atom so many times. So we will not bother about this atom. Some students they are confused. They are writing atoms definitions or word that is the atom. So this is not an atom. This is the atom. So that atom nothing but is the in the market or in the shop they are the giving the atom. No? That is atom. This is the atom. So definition of the atom. What is the definition? We know the definitions. We know the study of the definitions. Again, I am repeated. Atom is the smallest fundamental or smallest individual particles of an element is called atom. What is known as the atom? Atom nothing but is the smallest individual particles of an element. What is known as the element? We know the elements. Element is a new word. Elements: carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus, sulfur, chlorine, argon. So these are the elements. So these are the elements. From these, only one element we can choose, that is the carbon. Suppose that. So when this carbon, taking a carbon, so on that carbon atoms, by using the load, we can hammering.
यानी कि क्या करना है हमको, एक छोटा सा लोड लेके, वजन लेके उस कार्बन के एक छोटे से कंपाउंड्स को मारना है। Whenever by using this load we hammer on that carbon atom, so that will convert the many particles. Imagine करो कि ये इतना मोटा होगा कार्बन, जब हम इसको मार रहे हैं ऐसे दो वाले कंपाउंड्स फॉर्म होंगे, ऐसे 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 ऐसे, फिर उसमें से एक कंपाउंड से हमको और दो कंपाउंड्स फॉर्म होंगे छोटे छोटे से। अब बाकी के इसको छोड़ देंगे, खाली एक कंपाउंड। फिर जब हम छोटे वाले कंपाउंड्स को इतना मारे लेकिन उसके बावजूद भी इसके बाद में कोई दूसरा पार्टिकल्स में तब्दील या चेंजेस नहीं हो रहा, इसको जब हम कितना भी मारने के बावजूद भी कोई चेंजेस नहीं हो रहा, तो हम इसको बोलेंगे एटम्स। इसको क्या बोलना है? एटम्स। समझ में आ रहा है? देखिए, स्मॉलेस्ट छोटा सा, देखिए इंडिविजुअल, आप इसमें कोई ब्रेकेबल होने वाला नहीं है, टुकड़े होने वाले नहीं है। पार्टिकल्स किसका है जी? एलिमेंट का। उसको क्या बोलिए आप? एटम। तो अंडरस्टैंड होगा? एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एज द एटम। सो एक एटम ये नेचुरली है, पहले से तय है, नेचर में है, पूरे बने हुए हैं, हम उसको स्टडी कर रहे हैं, इसी को तो बोलते हैं हम रिसर्च। ऑलरेडी सर्चेस है, उसको आप क्या करें? रिसर्च है, पहले से तय है। तो उसमें साइंटिस्ट ने तय करके बताया कि ऐसे ऐसे जो कार्बन हमारे मौजूद है, एलिमेंट्स मौजूद है नेचर में, वो जो एटम है, सॉरी जो वो एलिमेंट है, वो एलिमेंट कैसा बना हुआ है? एटम के ग्रुप से बना हुआ है। तो अब डेफिनेशन हम आपको थोड़ी सी अंदाजा रहती है। व्हाट इज द एलिमेंट? एलिमेंट इज द ग्रुप ऑफ एटम। एलिमेंट इज द ग्रुप ऑफ एटम। देखो डेफिनेशन समझ में आती है? एक से एक रिलेटेड वर्ड से ही है, हम बार बार यूज करते हैं। जब तक हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब तक हमारे को वर्ड आएंगे, एलिमेंट आएगा, एटम आएगा, उसके बाद में कंपाउंड्स आएंगे, सब नाम आएंगे हमारे, तो हमारे को वन बाय वन समझ में आना चाहिए। सो ग्रुप ऑफ एटम नथिंग बट इज द एलिमेंट। ग्रुप ऑफ एटम नथिंग बट इज द एलिमेंट। सो एटम क्या? यही एलिमेंट का एक छोटा सा पार्टिकल, उसको क्या बोलेंगे? एटम बोलेंगे। तो ये दो टर्मिनोलॉजी या दो डेफिनेशंस हमारे समझ में आ गए। उसके बाद में यही एटम्स को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ कि एटम्स के बाद में एटम्स में कितने पार्टिकल्स हैं? कितने पार्टिकल्स हैं? उसके अंदर 3 पार्टिकल्स। कौन से हैं वो तीनों पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं? देयर आर द 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स कॉल्ड एज प्रोटॉन, सेकंड न्यूट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन। देखो साइंटिस्ट वो छोटा सा एटम, वो छोटे से एटम के अंदर और रिसर्च करके और उन्होंने पता लगा लिया कि वो छोटे से पार्टिकल्स के अंदर और क्या क्या रहते हैं, और उन्होंने बताया कि 3 छोटे से फंडामेंटल पार्टिकल्स रहते हैं, जिसका नाम है प्रोटॉन, जिसका नाम है न्यूट्रॉन, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन। तो इसके ऊपर चार्जेस क्या क्या हैं? चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और एक चार्ज कौन सा है? न्यूट्रल चार्ज। तो चार्जेस क्या क्या हैं? प्रोटॉन पे है पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे नो चार्ज और इट इज चार्ज लेस और इट इज न्यूट्रल, and the electron is having the minus charge, that is a negatively charged particle. तो प्रोटॉन को क्या बोलेंगे? प्रोटॉन इज ए पॉजिटिवली चार्ज particles and electron is the negatively charged particles, and the proton is neutron is the no charge. Neutron is the no charge. So out of these 3 fundamental particles, तीनों fundamental particles को कैसा मौजूद रहते हैं? क्या एटम्स के पूरी जगह में फिरते हैं, क्या आजू बाजू में रहते हैं या नहीं रहते, उसके बारे में। तो ये जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये दोनों जो है एटम के न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन जो है आउटसाइड न्यूक्लियस के आउटसाइड क्या करते हैं? रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, तो इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग कर रहे हैं किसके बाजू में, एटम्स के बाजू में, न्यूक्लियस के बाजू में। और न्यूक्लियस कहाँ है, इसको बोले हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाएंगे। तो थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर अगर हम निकालें तो कैसा, अब देखिए ये सेंटर जिसके ऊपर हम लिखते हैं ऐसा पॉजिटिव चार्ज, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। इसका मतलब है कि दोनों भी उसके अंदर होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब पॉजिटिव चार्ज ही उस पर क्यों लिखा जाता है, क्योंकि देखो प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव है, न्यूट्रॉन के ऊपर निगेटिव है, दोनों में से 50% चार्ज पॉजिटिव, इसलिए हम क्या लिखते हैं पॉजिटिव। ये न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये उसका फर्स्ट ऑर्बिट, ये फर्स्ट ऑर्बिट में उसके अंदर रहते हैं इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर रहते हैं इलेक्ट्रॉन, इसको बोला जाता है ऑर्बिट, इसको कहा जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर कौन रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब ये जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट की डेफिनेशंस क्या है, ऑर्बिट इज द पाथ or way in which इलेक्ट्रॉन को ऐसे शॉर्ट लिखा है, ए माइनस बोलते क्या पढ़ते हैं उसको, इलेक्ट्रॉन पढ़ना। सो इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिट इज द पाथ और वे इन विच इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्व। घूमना अलग, डेफिनेशन समझ, घूमना अलग। रिवॉल्व का मतलब है वो ऐसा घूम रहा है, यानी कि खुद भी अपने साथ में घूम रहा है, दैट इज कॉल्ड द रिवॉल्व। और घूमना वो तो सर ऐसा सर्कल कंप्लीट करना सही हो, ऐसा नहीं। इन्हें जब रिवॉल्व वर्ड आता है तो ऐसा ही होता है, चक्कर मारता है, अपने खुद के साथ में चक्कर मारता है, ये वर्ड को हम क्या बोलते हैं, उसको रिवॉल्व। ये रिवॉल्यूशन जब होता है या रिवॉल्व होता है वो किसके बाजू में होता है, न्यूक्लियस के बाजू में होता है। न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज क्या है, पॉजिटिव, इसके ऊपर चार्ज क्या है, नेगेटिव। अब और एक सवाल आता है, सर हम आज तक पढ़े कि पॉजिटिव और नेगेटिव आया कि दोनों में अट्रैक्शन होता है, सही बात है, पॉजिटिव नेगेटिव आया तो अट्रैक्शन होना है। फिर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, हमें पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा होता है क्या सर, नेगेटिव चार्ज मर्ज होता है क्या न्यूक्लियस के अंदर, नहीं होता। तो साइंटिस्ट यहाँ और एक बोल रहे हैं कि ऐसा एक और एक ऐसा फोर्स है जो नेगेटिव चार्ज को, ये वाला ये नेगेटिव चार्ज को ऐसा अपवर्ड डायरेक्शन में खींचता है, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं उसको, सेंट्रीपिटल फोर्स। वन ऑफ द इमेजिनरी फोर्स विच इज द पुल आउटवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से आउटवर्ड डायरेक्शन में पुल करता है, आउटवर्ड डायरेक्शन में पुल करने की वजह से इन्हें क्या करता है, इनवर्ड डायरेक्शन में पुल करता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एक आदमी, एक फोर्स समझो, इमेजिन करो, एक फोर्स उधर खींच रहा है, एक फोर्स इधर खींच रहा है, तो दोनों के बीच में ये वाला फोर्स क्या करेगा, जो रिवॉल्व कर रहा है एटम, चुप घूमेगा, जहाँ इधर जाएगा ना इधर जाएगा। तो वैसा होगा इसकी भी हालत, जिसके वजह से ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस अपने तरफ खींचेगा पॉजिटिव चार्ज रहने की वजह से, इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज रहने की वजह से इधर आएगा। तो ऐसा होता है कि थोड़ा इधर आ रहा है, फिर ऐसा इमेजिनरी फोर्स है उन्हें उधर खींच रहे हैं, और दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, ये ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व होते रहता है, घूमते रहते हैं। और ऑर्बिट की डेफिनेशन है, ऑर्बिट का मतलब है ऑर्बिट इज द पाथ, यानी कि रास्ता या वे जिसको बोलते हैं हम, उसके अंदर रिवॉल्व होना, उसके अंदर घूमना, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। So in that orbit, orbitals are there. इसके अंदर ऑर्बिटल रहते हैं, ऑर्बिट के अंदर क्या रहते हैं, ऑर्बिटल। देखो वो छोटी सी चीज है, वो छोटे सी चीज के अंदर और क्या क्या है बता रहे हैं। सो ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल। सो ऑर्बिटल हमारे पता है क्या क्या है ऑर्बिटल्स, जैसे कि हमारे मालूम है के एल एम एन, मेन शेल के अंदर ऑर्बिटल्स कौन से हैं, एस पी डी एंड एम। तो हम उसको डिटेल स्टडी करेंगे। अब हमको यहाँ तक मालूम हो गया है, अब हम उसको आगे बढ़ेंगे। इसका जरा बड़ा सा स्ट्रक्चर बताता हूँ मैं आपको, एटम उसका। ये है न्यूक्लियस आपका, ये न्यूक्लियस के बाजू में फर्स्ट ऑर्बिट, उसके बाजू में ये
सेकेंड ऑर्बिट, उसके बाजू में ए थर्ड ऑर्बिट। एग्जाम्पल के से यल से यम, और हमको जैसा पता है और एक से लाती है इसको बोलते हैं यम से। तो these are the main shells, K, L, M, N. These are the main shells, K, L, M and the N. So in the main shells, यहाँ लिखो मैं साइड में देखो K, L, M, N। तो इसके ऊपर मैं सीरियल नंबर लिखूँ 1, 2, 3, 4। अब इसको कैसा पढ़ना देखो कि मेन शेल्स हैव वन सबसेट, के मेन शेल्स हैव वन सबसेट दैट इज द एस। के मेन शेल्स हैव द वन सबसेट दैट इज द एस। अब जैसे कि यहाँ लिखा हूँ ऐसा वैसे लिखना, यल मेन शेल्स हैव टू सबसेट, एस पी। यम मेन शेल्स हैव थ्री सबसेट, एस पी डी। And the N main shells have 4 subset, S, P, D and F. So हर एक सबसेल्स की, हर एक ऑर्बिटल की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो कुछ इस तरीके से। S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, P में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, D में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और F में 14 इलेक्ट्रॉन। These are the maximum capacity or maximum electrons which are occupying the space of the orbit. इतने ही रहते हैं, इससे कम रहते हैं क्या? और इससे कम रह सकते हैं, इससे ज़्यादा रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते। उसकी वजह जैसे कि हमको मालूम है 1 लीटर अगर हम मेजरिंग सिलेंडर ले रहे हैं, 1 लीटर से ज़्यादा एक बूंद भी अगर हम डालें तो वो नीचे गिर जाता है। इसका मतलब क्या है? उसकी कैपेसिटी कितनी है? 1 लीटर की ही है। तो 1 लीटर की जैसा इसमें आपको वैसे ही कैपेसिटी है। 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, कम रह सकते, 6 से ज़्यादा नहीं, 10 से ज़्यादा नहीं, 14 से ज़्यादा नहीं, कम कितने भी कम 1 या इवन ब्लैंक भी रह सकते हैं, यानी कि P = 0 रह सकता है, D = 0 रह सकता है, F = 0 रहता है, S = 0 कभी भी नहीं रहता, S = 0 कभी भी नहीं रहता। सो अब उसके बाद में हम देखेंगे कि मैक्सिमम कैपेसिटी से उसके ऑर्बिट की कैपेसिटी कैसा निकालते हैं। जैसे कि हमारा S की कैपेसिटी कितनी? 2, या S की कितनी? 2। अभी देखो P की हम यहाँ लिखिए 6, सो इट इज 6, देन इट इज 2 + 6 + अगेन D is 10, D is 10, now 2 + 6 + 10 + 14, it is a 40. So finally it is a फाइनल कितना होता है? 2, फाइनल कितना होता है? 8, फाइनल कितना होता है? 18 और फाइनल कितना होता है लास्ट में? 32। लास्ट में कितना होता है? 32। तो अब यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट की कैपेसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितने घूम सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने? 8, इसमें कितने? 18, इसमें कितने? 32। जस्ट क्लियर? फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 8 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट में 18 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद में 32 इलेक्ट्रॉन्स। सो मैक्सिमम इतने इलेक्ट्रॉन ये ऑर्बिट में घूम सकते हैं, इतने ही इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रहते हैं और इतने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर। सो ये ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल रहते हैं, इसको हम बोल रहे हैं SPDF। SPDF ये जो है SPDF है। सो मैक्सिमम कैपेसिटी जो फाइंड करने की है इलेक्ट्रॉन की वो क्या है? ऑर्बिटल है, नॉट द ऑर्बिट, बिकॉज ऑर्बिट में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। जैसा कि हम कॉलेज से घर को जाते हैं तो हमारे को ज़्यादा कैपेसिटी, यानी कि ज़्यादातर हम कहाँ मिल सकते हैं? घर में मिल सकते हैं, रास्ते पर थोड़ी मिल सकते हैं, रास्ते में तो हम घूमते रहते हैं एक तरफ से दूसरी तरफ। तो वैसा ही है, हमारा रास्ता जो है ऑर्बिट है और हमारा घर जो है ऑर्बिटल है। तो हमारे को ज़्यादातर आप मिलने के चांसेस कहाँ हैं? तो घर में। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का घर क्या है? ऑर्बिटल है। इसलिए हम वहाँ पे बोल रहे हैं कि द मैक्सिमम
कैपेसिटी टू फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन दैट इज द ऑर्बिटल। तो इसलिए हम आपको बोलें कि ज़्यादातर मिलने के चांसेस इलेक्ट्रॉन के कहाँ ही ऑर्बिटल में। फिर बाद में ऑर्बिटल ओवरलैप आपको हर फर्स्ट ईयर में आने के बाद में केमिकल बॉन्डिंग में मालूम हो जाता है कि किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन होता है, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कैसा होता है, किस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनता है जिसमें बोलते टेट्राहेड्रल है, उसके बाद में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं आपको, वो आपको फर्स्ट ईयर में केमिकल बॉन्डिंग में आपको पढ़ाया जाता है। तो यहाँ तक का एटम के बारे में बेसिक आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ये आपको मालूम होना था। इसके ऊपर से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस निकाल सकते हैं, इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक ठीक है। इसके बाद में हम इसका जो पार्ट 1 का कंटिन्यू पार्ट 2 में करेंगे नेक्स्ट डे इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।